everyone. Good evening. I hope everybody's doing good, and it's been a while that we connected over spaces. I myself have been wondering like to spare time and to have some conversation around the markets. So here we are once again with a session which would be more around a conversation around the market from educational point of view. We always say that we try best in our capacity to share our views in individual capacity. By no means those views are meant to influence anybody's decision, be it buy, sell, or hold. You can surely have a differentiating or different view on that, and that is what defines the market. And the idea is always so as to respect views of each other, and we can always learn from others is something which I believe, and this platform is unique in the sense like the participants, the speaker, and the good set of questions from the audience are something which adds to everybody's knowledge. So with that note, we'll have another interesting session today, and definitely we always believe that good set of speakers always add value. So those who think they can add some value or have some meaningful questions so as to drive the conversation, please we'll be happy to add you that. So Sandeep bhai, some issue at your end joining as a speaker. Let me check again. And I also sent a request to Prateek bhai. So Prateek Bagadia sir, if you're listening us, I would request you to join and definitely will love to hear your thoughts. So Sandeep bhai, just to check on the voice thing, am I audible properly? And we can also check from your end as well. Oh, I think you are audible. Am I audible? Yes, properly. I've also requested Prateek to come as a speaker. I'm not sure whether he has joined, and Dharmendra also, if you can make Yeah, him a speaker. sure. I've sent request to both of them, Dharmendra as well as Prateek Bagadia. So I would request you guys join as a speaker, and if there are any issues, you can let me know over a DM or WhatsApp. So definitely, okay. We have Dharmendra with us. So Sandeep bhai, back to UK or नहीं बैक टू यूके good. थोड़ी देर मुझे होस्ट बन जाने दो प्रिंस ठीक है Sure, पहले मैं please, धर्मेंद्र sure. से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एंड आई एम स्टेपिंग आउट आल्सो फॉर दिस स्पेस सो थोड़ा आउटडोर नॉइज रहेगी धर्मेंद्र ये तो हाउ इज द टेक्निकल कुछ वर्क कर रहा है कि एलसी यूसी ईएसएम में कहाँ वर्क करता होगा टेक्निकल्स Dharmendra, you are on mute. You have to unmute and then try speaking, Now please. my voice is now Yes. audible. Yeah, आ रही है आवाज आपकी अच्छे से. नहीं सर टेक्निकल अभी तो यूसीएलसी में वैसे तो पहले ही नहीं कर रहा और अभी भी नहीं कर रहा. हाँ अभी कुछ स्टॉक नीचे आ रहे वहां पे देख रहे कि कहीं ना कहीं कुछ चांस होगा तो वो टच करेगा तो चांस लेंगे वरना आने दिया ऐसा है. अच्छा धर्मेंद्र एक और क्वेश्चन है जो अभी हाँ $1 जी. million क्वेश्चन समहाउ जब बड़े स्टॉक्स गिरते हैं E2E गिरा मतलब तो 8,000-9,000 करोड़ की मार्केट कैप से बीएससी गिरा है बिल्कुल वर्टिकल फॉल हुआ है यस यस. बहुत सारे स्टॉक्स 30-40% में तो वर्टिकल फॉल हुए हैं स्मॉल कैप मिड कैप में मैं देखता हूँ ज्यादा तो नहीं मैं नोटिस करता और वो ट्विटर में या कहीं पे कोई बताता रहता है तो समझ में आता है एंड फॉर अ सेक इंडसेंड वगैरह को साइड कर देते हैं वो तो केस स्पेसिफिक है एक्सप्लेन्ड है ठीक है जहां पे थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड है केवल वैल्यूएशन रिलेटेड करेक्शंस हुए हैं वहां पे कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि कौन बेच रहा है एग्जैक्टली. वहां ये मान के चला जाता है कि किसी ने बेचा होगा किसी ने खरीदा होगा एसमी न्यूज आया में बस. एक सिग्निफिकेंट फोकस हमेशा लोगों का रहा है कि वो पीपल इन्वेस्टिंग करते रहे हैं क्योंकि उन्होंने खरीदा इसलिए कि एक्स बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा बेचा इसलिए क्योंकि एक्स बड़े इन्वेस्टर ने बोला कि ओवर वैल्यूड है तो जब वो एक अनएक्सप्लेन्ड फॉल आ रहा है तो मुझे मल्टीपल फोरम्स में
ये क्वेश्चन का बिल्कुल एक इको टाइप में सुनाई पड़ रहा है. एवरीवन इज आस्किंग हु इज द सेलर, right? So first of all, I want to kind of make this point here because I see so many people discussing it in various kind of social media. Who are the sellers? Who are the sellers? I mean, using exact words, साला बेच कौन रहा है? Right. तो ये क्वेश्चन ना इतनी बार उठ रहा है, लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एज इफ कि कोई वार में जाना था. जैसे वार में जाते हैं ना कि भाई जिसका मन है बेच रहा है, जिसका मन है खरीद रहा है. आपका मन है बेच दो, आपका मन है खरीद लो, राइट? Ideally, it should have not mattered in July, and it should not have mattered in March. But unfortunately, it mattered in July on the up. Then also people were buying because others were buying. Today also they are selling because they are probably struggling to understand who are these so-called big sellers. अब इसमें मेरा जो बड़ा नेट सा सिंपल सा है, जो कि इतना कोई ऐसा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना कोई सेब के पेड़ के नीचे बैठ के सोचने की जरूरत है कि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा. दैट इज हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, राइट? इसके ऊपर इतने फॉरवर्ड्स आते हैं धर्मेंद्र भाई, आप लोग तो सीजन 2, तो आप लोगों को फॉरवर्ड भी याद होगा, वो मंकी वाला, मैंगो वाला. दैट्स हाउ एसेट रिप्राइसिंग वर्क्स, राइट? अभी थोड़ी देर के लिए एसएमई के जो बिलीवर्स हैं उनको एक स्टैटिक पॉपुलेशन मान लीजिए, राइट? लेट्स से 1 लाख पीपल बिलीव इन दिस सेगमेंट. बिलीव एज इन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है ना कि ये कौन सी कंपनियां हैं, लॉट साइज में क्यों ट्रेड करती हैं, यूसी क्या है, एलसी क्या है. मेरे बहुत सारे लर्नड मार्केट्स फ्रेंड्स हैं, उनको पता ही नहीं है सेगमेंट. उनको सुन के लगता है व्हाट इज एलसी, व्हाट डू यू मीन बाय एलसी, यूसी, लॉट साइज. किसी का समय नहीं है ना. हमें लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया है. टोटल 50,000 करोड़ का फ्लोट है, ठीक है, 700-800 छोटी सी टाइनी कंपनीज है. तो लेट्स से फॉर आर्गुमेंट सेक 1 लाख लोग हैं जो ये इस सेगमेंट पे बिलीव करते थे, चाहे वो फोमो में आए, चाहे वो ट्विटर की वजह से आए, चाहे वो किसी को रिच होते हुए देख के आए, चाहे वो खुद अच्छे से पढ़ के आए और वो कई प्रमोटर्स को जानते थे फैमिली बैकग्राउंड से, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, जिस तरीके से भी आए. And then there are many veteran players also who are pretty much active in SME since, let's say, when it started in 2013, right? So some of them have made enormous wealth also in first round, in second round, in third round also. Actually 2 ही राउंड बोला जाएगा. 2018 तक का एक राउंड था और एक पोस्ट कोविड राउंड था. तो यही लोग हैं और नंबर ऑफ कंपनीज 250 दो साल बैक टू बैक आई. तो 500 कंपनियां आई. एवरेज जो फंड रेज होता था वो 30-40 करोड़ था. सब ऑन एन एवरेज 2 से 3 गुना 4 गुना हुई, ठीक है. तो इफेक्टिवली एक 30-40 हजार करोड़ का नोशनल वेल्थ जनरेट हुआ. आज जब गिर रहा है तो एक बंदा अपने लेस फेवरेट स्टॉक से बेच करके ज्यादा हाई कन्विक्शन वाले पे एवरेज कर रहा है. किसी भी स्टॉक में कुछ लोगों का कन्विक्शन ज्यादा होता है, कुछ लोगों का कम होता है. कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग किसी कंपनी में बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की कम होती है. कुछ लोगों को एक सेगमेंट ज्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों को कम आता है. कुछ लोगों को एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आती है, किसी को अग्रेसिव मैनेजमेंट पसंद है, बोलते हैं तो बड़ा ठंडा मैनेजमेंट है, किसी को ठंडा ही मैनेजमेंट पसंद है. तो वो बोलते हैं ना कि अपने अपने तासीर के हिसाब से लोग सिलेक्शन करते हैं. बुल मार्केट में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग, धर्मेंद्र भाई, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रख रहे थे जो उनको पसंद ही नहीं थे. ना वो सेगमेंट पसंद थे, ना वो मल्टीपल्स पसंद थे, बट मजबूरी में लेना पड़ रहा था. तो अब रीएडजस्टमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. ये इस पे मैंने काफी डेटा देखा पिछले 10-15 दिन में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि पहले 2.5-3 महीने मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कभी इस बात पे. तो इतना क्वेश्चन उठा तो क्योंकि ये प्रोमोटर्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन है, एलएम्स के माइंड में क्वेश्चन है, रिलेटिवली स्मॉलर इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन है. इवन मेनी यूएचएनआईज आर सरप्राइज्ड कि यार ये सेलर्स हैं कौन. तो ये सेलर्स कुछ नहीं है. हम सब ने फॉर राइट रीजन, दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क, हमने उसको रिप्राइस कर दिया है पूरे सेगमेंट को और इफेक्टिवली सब लोग 30-40% डाउन है. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ मार्केट्स वर्क. वो नोशनल वेल्थ जिसकी ईटूई में बनी थी, बोंदादा में बनी थी, हरियाणा में डाउन थी, तो वो डाउन थी, तो कहीं ना कहीं से और लॉस कवर करके वो कवर करेगा ही. सेम नंबर ऑफ एसेट, सेम नंबर ऑफ पीपल, सेम नंबर स्टार्टिंग कैपिटल. अर्लियर यू वर कॉलिंग इट 250, नाउ यू आर कॉलिंग इट 130, स्टार्टिंग एट 100. तो बस इतना ही हो रहा है. मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ धर्मेंद्र स्पेस में या प्रिंस, कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यंग लोग इसको किसी कॉन्स्पिरेसी से देखते हैं कि एज कोई रा आ रहा है या एलियन आ रहा है. आप देखोगे तो मैंने मल्टीपल ट्वीट्स में डाला कि देयर आर नो एलियंस कमिंग इन एसएमई ट्रेडिंग. नेचुरली इसमें से कुछ बहुत स्मार्ट लोग होंगे, कुछ लोग बाई शेयर लकी होंगे, उन्होंने जैन में बेच दिया, फेब में बेच दिया.
कुछ लोगों ने पैनिक में बाद में बेचा और उसके बाद भी उनका 20% बच गया है. तो देयर विल ऑलवेज बी सम नेट विनर्स, नेट लूजर्स, बट देयर इज नो ग्रैंड डिजाइन इनटू दिस सेलिंग विच पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट, विच बेसिकली मीन्स कि जिस दिन कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो ये वैसा ही रिवर्सल भी होगा. अभी कब होगा तब की तब देखना पड़ेगा. तो देर आर नो बैड रिजल्ट्स, बैड गवर्नेंस. एक दो केसेस को हटा दीजिए, अगर मेन बोर्ड में वो आ रहा है, आई मीन इंसिडेंटली Gensol was also a main board. People miss it was not an SME, right? इंडसएंड में जो भी मतलब कंपनीज में दो चार स्पेसिफिक केसेस पे क्यों फोकस करना, बट ब्रॉडली इट इज ए वैल्यूएशन ड्रिवन फॉल, नॉट सो मच ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो सितंबर से बात हो रही थी, अभी अचानक से कैसे एक्सेलरेटेड इतना फॉल हो गया? इट वाज जस्ट वेरी फैंसीड वैल्यूएशंस अक्रॉस स्मॉल कैप मिड कैप्स, जिसकी वजह से एसएमई सेगमेंट को तोड़ दिया है. अब इसमें लिटरली दो कैंप्स हैं प्रिंस. एक कैंप ये कह रहा है कि 2.5 साल से एक मेनिया चल रहा था एसएमई में, अब ये दोबारा नहीं चलेगा. 3-4 साल तक इन छोटी कंपनियों में बहुत स्कैम निकल के आएंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इसमें जितना भी अपना कैपिटल बचा है बचा के ले आओ. मुझे लगता है कि ऐसे लोग 10% हैं जिन्होंने 10% कैपिटल वाइज जो एसएमई में प्रिडोमिनेंटली एक्टिव थे या साइजबल एक्टिव थे, उन्होंने अपना पैसा स्लोली मेन बोर्ड में मूव कर लिया, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ कंसर्न और आउट ऑफ स्मार्टनेस, जो भी होगा वो तो दैट टाइम विल टेल. ठीक है. देन देयर आर पीपल लाइक अस हु बिलीव कि ये these are the companies which can still grow 40, 50, 60% for good 2-3 years, either because of a small base, either because of unique position, or because they were able to raise funds last year, so their balance sheet is sorted for another, doubler very easily as long as they have work in hand. I'm talking about the businesses which can grow from funding. I mean, there are only 30-40% businesses which can grow by sheer funding. For rest of the businesses to grow 30-40% requires, tremendous amount of performance, right? And naturally there will be some skeletons here and there. तो अब यहाँ से literally बोलते हैं ना, tale of two cities होगा. There are people who disappeared from this segment, fair enough, and there are some people who are still believing कि ये कंपनियां ऑन एन एवरेज अगर एसएमई का समय निकालेंगे, जो लोग बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं, दे कैन वेरी क्विकली कंफर्म, मतलब very easily anybody can confirm now whether P is a good metric or whether we should apply some kind of a size discount or size premium or governance discount or some kind of a premium on certain sector. वो सब secondary है. Starting point let's say multiples and earnings, right? Earnings के terms में FY25 पे these companies at SME as a cohort or as a group or basket is surely trading sub 20. And assuming another 20-30% bare minimum as a basket to get the growth in H2 year on year, I mean, most likely we'll get 40% because some big companies will report very good numbers, right? Or widely expected numbers. No surprises also there, frankly. TTMP will probably drop to 15-18 if stocks remain here in another 3-4 months, right? From there, you expect another 30-40%, and then we are talking about low teens to single digit. Historically, people have made money buying such baskets. Doesn't mean this will happen. Maybe there is a great recession. Maybe there is a war. Maybe everything we learned in finance was a hoax and some new theory will come. It's market end of the day. It's not maths. So we should be mentally prepared. But if past or any kind of a finance basics have any any semblance of reality or logic, then these are the levels from where historically people have made crazy money. The only thing is it won't be like a quick, maybe last March it was fall of 15 days and then sharp rally of 3 months. This year it has been like 4 months of brutal fall and people have lost appetite for any kind of recovery. So maybe it will take 3-4 months because every rise might be sold also by people who are feeling badly stuck, right? Especially the people who joined SME in last 6 months. So anyway, random thoughts, lot of thoughts, frankly. As always, thanks Prince for So, listening for a long yeah. monologue. So, Sandeep, to continue on the ongoing discussion of selling, so there is a MTF book of somewhat 70,000 odd crores. So, do you believe that is also a risk, or that number is not significant in your No, view? not And at all. It is not at all second question, significant, Prince. I'll tell you why. But before that, I mean, your messages are not on. So a space without messages, it is literally like a broadcast, not a space.
right? Given we allow limited speakers, at least allow people to ask questions, right? Do you want to close and restart? Let me check. Not Because sure about let's not how make it it like gets a used. broadcast, like people can only listen and can't participate. No, no. Let me check. Meanwhile, you can take Yeah, that so question. Otherwise, MTF, we'll see, first of restart. all, it looks like a big number and it is big number. 70,000 crore. People say it was 85, it came to 70. Actually, that's the fall in the AUM itself, right? All stocks have fallen 20, 30, 40%. Main board also. So that's not like such a significant number, which is like a big fault line for Indian market, or which is so unheard that it never happened in past or anywhere else in the world, right? All said and done, there are a lot of people who take leverage. MTF is just one leverage. Um, I don't consider that number to be so big. There were bigger fault lines, especially small cap, mid caps, which broadly has been corrected, but nothing stops them to correct another 20-30% at basket level over a period of time. A lot of these, let's say tier 2 good IT companies, not great IT companies, always traded at 15-20 multiples. So earlier only, So, Sandeep, Pratik, I'm just we coming to you. lost you. So earlier, likes of only United Spirits and United Breweries used to trade 50-60, and that was frankly more of an MNC premium than the liquor premium. And then suddenly the theory was revised that every liquor company should trade at 40-50-60. So those excesses are getting corrected. Same in jewelry. Earlier it was Titan. It was getting a governance premium. The theory was revised in last 6 months that as if like every jewelry company, be it a known bad character kind of a driven company, still, those were trading at some exorbitant multiples. So those excesses can come down, but that will not be because of MTF. MTF is a very tiny little reflection of the market, I'll say. But back to Pratik. Pratik, thanks for coming as a speaker. I met you in Goa. It was pleasure exchanging few notes. I thought we should request you to come as a speaker and share some of your journey. Straight away putting you on the spot. But let me frame a question so that you can take it and probably just talk also. So first of all, what are you doing? Buying, selling, afraid, neutral, numb? Yes, Pratik, you're audible. Please go ahead. I guess you need to repeat the question to ओके Pratik सो bhai. प्रतीक मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं मैं जस्ट लाइक ओपनिंग वो होता है लूजनर्स होते हैं फास्ट बॉलर्स डालते हैं सो आई एम जस्ट पुटिंग ए लूजनर सो दैट यू कैन टेक इट एंड स्टार्ट स्पीकिंग सो क्या बोलते हैं ना वो न्यूज में बोलते हैं ना कैसा लग रहा है क्या फीलिंग आ रही है हाउ इज द पल्स थैंक यू संदीप भाई फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ये मेरा पहला स्पेस है तो मुझे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं स्पेस के मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और आप प्लीज ऐसे लो फुल टॉस इसी मुझे डाल दे रहिए सिंपल बॉल बिकॉज मैं बाउंसर्स और जॉकर्स खेलने के काबिल नहीं हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी एंड या मार्केट तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है पिछले 6 महीनों से बट आई थिंक इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट एंड आने वाले अगर मैं 6 से 9 महीने की बात करूं तो आई सी सम वेरी गुड ट्रिगर्स। सबसे पहले तो आई थिंक जहां तक मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मैंने कहीं कोई इंटरव्यू पढ़ा था एंड ही इज सेइंग दैट इंडिया इज लाइकली टू ग्रो एट अराउंड 7.6% इन Q4 थैंक्स टू महाकुंभ। महाकुंभ के कारण शायद हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट्स जो है वो हमारे जीडीपी के अंदर इम्पैक्ट करेगा। तो जब अगर ऐसी चीजें हमें एक सेंटिमेंटल चेंज जो है वो बहुत बड़ा हिट करेगा बिकॉज ये नंबर्स प्रोबेबली मई एंड में आएंगे जीडीपी के नंबर्स बट मार्केट का जो फैक्टर इन है वो प्रोबेबली मई मिड से शुरू होना चाहिए कि भाई इस टाइप का नंबर्स आने के चांसेस हैं। दूसरा हमारा Q1 और Q2 लास्ट ईयर का जो था वो बहुत ही लो बेस पर था तो इस बार Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आते हैं वो एक लो बेस पर आएंगे तो प्रोबेबली अगेन फ्रॉम अ रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सेंटिमेंटल चेंज हो सकता है कि लो बेस है तो हो सकता है आने वाले जो 3 से 4 क्वार्टर्स हैं उनके नंबर्स हमें अच्छे दिखें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो आई कम फ्रॉम गुजरात सूरत तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई है। मैं लास्ट वीक ही हमारे वाटर मिनिस्टर जो है CR पाटिल साहब उनसे मिला हूँ एंड ही इज़ वेरी बुलिश एंड उनका वही कहना है कि भाई कुछ टाइम से जो प्रोजेक्ट्स हमारे अटके हुए थे फॉर वट एवर रीजन आई डोंट वांट टू मेंशन ऑन द स्पेस हियर बट वो अब क्लियर हो रहे हैं एंड प्रोबेबली आने वाले 3 से 4 महीनों में हमें अच्छे खासी जो है वो केपेक्स गवर्नमेंट साइड से दिखने शुरू होंगे। तो आई थिंक ग्रोथ स्टोरी एवरीवन बिलीव्स इन इट्स जस्ट दैट जो एक
छोटा मोटा स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में आया था, प्रोबेबली वो इट इज पास्ट। एंड एक जो सेंटिमेंटल शिफ्ट की हम जो बात कर रहे थे वो आने वाले 6 महीनों में शायद देखने को मिले। तो अभी ये हो रहा है कि जैसे कल जो नंबर्स आए, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, आईआईपी के नंबर्स आए, अच्छे आने के बावजूद आज यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं यही है कि भाई एवरीथिंग इज गुड, इज जस्ट दैट द सेंटिमेंट्स इज बैड। सो आई होप फॉर इन द नेक्स्ट 6 months सेंटिमेंट्स भी अच्छे होंगे एंड जो लेवल्स हम देख रहे हैं आज उससे हम कई गुना ऊपर होंगे। Fantastic points, Pratik. In fact, abhi I visited quite a bit of businesses, mostly on the unlisted side, just to get the ओके pulse of ओके the things India trip में. ओके So वहाँ पे भी मुझे भी same feedback है. Luckily you are talking about the water. JJM has been a pain point for a lot of stocks, और वो H2 में extreme pain दिखेगा numbers में लोगों को. But the reverse is कि वो last tranches वगैरह clear हो रही है मार्च में. So the payments which were stuck for 9 to 12 months are now finally getting released. And the budget has been rolled, new tenders are being awarded. So market usual normal condition में 3-4 महीने को factor in कर देता है. इस समय मूड और सेंटिमेंट्स की वजह से हो सकता है वो इस बार बोले शो मी द प्रूफ. That's a different thing, but I think that as an space, especially if it gets beaten heavily post H2, might be very interesting. I mean, some of those legendary picks, like you pick something when everyone hates it, kind of a thing, right? And I was never a big fan of those EPC multiples, but the reverse is there are some really good balance sheets, good new style of promoters who takes care of their cash flows, who are who are keeping a close eye on their receivables, their debts, their balance sheets. Those companies will get stronger, and if no matter what multiples you give, if in 3 years by sheer capex they can grow in size by 3-4 times, there is no way those stocks will not do well, right? Whether you give them discount or premium doesn't matter. Purely because their earnings and everything, the balance sheet sizes, everything will go to a different league altogether. The game is to identify those 10, 15, 20% promoters within the vast swath of EPCs, I'll say. या So, एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा संदीप जी। जस्ट टू ऐड, आई डोंट थिंक कि ईपीसी कंपनीज को गोइंग फॉरवर्ड या कभी भी मार्केट ने हिस्टोरिकली बहुत हाई वैल्यूएशन दी है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट का यही परसेप्शन रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, B2C कंपनीज या जो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनको एक हायर प्रीमियम मिलता है प्योरली बिकॉज ऑफ ब्रांड इक्विटी। एंड जो B2B साइड की जो कंपनीज हैं उसमें भी अगर ईपीसी साइड में हम आते हैं तो उनको मल्टीपल्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, एकदम टेकन है। इट्स जस्ट दैट कि भाई जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अच्छे रिसीवेबल साइड में जो काम करेंगे वो एक ईपीसी सेक्टर के अंदर प्रोबेबली एक प्रीमियम पे ट्रेड करे। बाकी expecting them to get higher multiples and comparing it with B2C companies is just not possible, I believe. No, I think that phase is over. It's only for books now. No matter how strong they show earnings, none of these EPC companies will trade at 60, 50, 70 multiples in the name of power theme or let's say telecom theme or anything. So that part is agreed. And second thing is, obviously, Pratik, you understand and most of the listeners here understand, but just in case someone, the reason is very simple. अभी बार बार एक क्वेश्चन उठता है फंडिंग, व्हाट अबाउट फंडिंग? सो not only there are companies which generate positive cash flows, in fact there are companies like hotels and all which are negative cash flows, negative working capital, right? Because they get advances. So, and there are enough balance sheets which are sitting on zero debts in consumer, in IT, in this thing. And all those stocks were last year forgotten, Pratik. So no one was trying to touch these stocks. On purpose, I'm taking names which I'm not holding, at least on the next statement. Like, let's say, Infolian, right? The companies which are growing 30-40%, good companies. Anybody can do a quick research and figure out that unlikely there will be any CG issues. Recently EMA Partners, a lot of these companies which got listed, but they were never getting any valuation from micro cap investors because there is no way they can grow more than 30-40% in a year. Even that will be phenomenal growth for their kind of a business model, right? And suddenly I feel once these pang periods, March pangs of tax harvesting and everything will be over, people in this next cycle will probably start appreciating such business models much more than what they were appreciating in previous cycle, which ended probably a few months back. Anyway, over to Pratik. Anything to So, add? Pradeep, So,
हाँ, प्रतीक को 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन विल मूव बैक टू धर्मेंद्र। मे बी No, प्रिंस no, यू वांट टू आस्क please go एनीथिंग ahead. फ्रॉम प्रतीक? I'm here in the space. तो बीच पे जब भी रहेगी मैं I'll join. So please हम बाकी स्पीकर्स को भी मौका देते हैं. ठीक है, ओवर टू यू प्रिंस, यू कैन मॉडरेट बिटवीन प्रतीक एंड So धर्मेंद्र। probably Sandeep, next question, since you both were there in the Goa event. So my question would be around that, like you must have met like-minded investors, HNIs, and perhaps possibly some managements also. So on ground, I mean specifically, Pratik bhai talked about Surat and the proximity areas of Gujarat. But Sandeep, you had a long vacation in India recently, have visited many places. So sentiment-wise, do you believe, as there have been talks about the economy slowdown and all, so on ground, are there any pain points visible, or it's like when things are negative, everybody try to justify with one reason or the other, citing some things about the economy or so? नहीं, आई थिंक पेन पॉइंट्स पे जो आपने बात की है वो एटलीस्ट जो मैं मेरे सर्कल में जो बिजनेस के अंदर है उनसे मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली पेन पॉइंट्स हैं. फिर वो B2B साइड में हो कि B2C साइड में हो, स्लो डाउन का फर्क डेफिनेटली है. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई जो कैश फ्लो जो मार्केट में है वो काफी टाइम से अटका हुआ है, और जब ये कैश घूमने का साइकिल जो है वो स्लो हो जाता है तो वो उसका एक लैग इफेक्ट आता है प्रोबेबली 6 से 9 महीने के बाद, जो आपके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट करता है. तो ये चीज जो है वो पिछले जून जुलाई से मैं सुनते आ रहा हूँ कि भाई धंधा नहीं हो रहा है या धंधा हो रहा है तो पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं. तो ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत खराब थे. बट लकीली अगर मैं फेब ऑनवर्ड्स बात करूं तो प्रोबेबली ये सेंटिमेंट्स जो है वो काफी हद तक चेंज हुए हैं. जैसे कि अभी रमजान का महीना शुरू है, जो मेरे सर्कल में जो लोग इसके अंदर डील करते हैं रमजान के साइड में, वहां वो देख रहे हैं कि अच्छा खासा पिकअप आया है, वहां सेंटिमेंटल बूस्ट आया है. प्लस यहाँ पर जो छोटी मोटी जो टेक्सटाइल एंड केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं सूरत बेस्ड, उनको थोड़ा बहुत जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है. एंड वहां पे एक टाइप का मूवमेंट आया है. डायमंड सेक्टर अगेन, मतलब मैं सूरत रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ कि सूरत टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है. डायमंड्स में वो अभी भी पिक नहीं आया है. लैब ग्रोन साइड में दिख रहा है बट नेचुरल साइड में बहुत डाउन है. टेक्सटाइल्स के अंदर डेफिनेटली टेक्सटाइल्स केमिकल्स के अंदर एक मूव आया है. एंड होपफुली आने वाले 3 से 6 महीनों में उसका इम्पैक्ट नजर आए, बिकॉज इसका जो लैग इफेक्ट है वो अब हो चुका है. एंड प्रोबेबली अब यहाँ से जो पॉजिटिव टर्न अराउंड को जो इम्पैक्ट आएगा उसमें भी 3 से 6 महीने का लैग होगा. तो प्रोबेबली Q1 या Q2 से हम एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. परफेक्ट प्रिंस, इनफैक्ट मोर और लेस सेम थॉट्स. ये जो पेन्स थे स्पेशली, प्रतीक आप B2B बोल रहे हो, मैं तो उसको B2G बोल देता हूँ, बिजनेस टू गवर्नमेंट G2B बोल लो. ओके. वो सेगमेंट में सबसे क्लियर कट पेन था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली, आई मीन मेन बोर्ड, स्मॉल कैप्स, everyone was talking about. Earlier we blamed it on excessive rains in select industrial estates, but the reality was it was just big general election. After that, government just took a sigh of relief, went decisively social to win key electoral states, without which they would have struggled with a weak government at top. So they focused on Maharashtra primarily, right? They won Haryana and Delhi. So basically, either on purpose or by design or by sheer bad luck, government was clearly misdirected. It still looks, बट देन एटलीस्ट जो मनी पूरा का पूरा रुक गया था क्योंकि उतना बजटरी एलोकेशन नहीं था, वो फिर से अभी रिराउट हो रहा है. मल्टीपल लोग बोल रहे हैं कि फरवरी मार्च में पेमेंट से स्टार्ट हो गई है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. मार्केट्स यूजुअली मार्केट्स आर लीडिंग इंडिकेटर, बट इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट्स ने लेट रिएक्ट किया है डिटेरियोरेशन में, और हो सकता है मार्केट लेट रिएक्ट करेगा इम्प्रूवमेंट में भी, स्पेशली फॉर B2G सेगमेंट. ओवरऑल कंजम्पशन का इफेक्ट, प्रतीक, आई एम happily surprised you are if predicting some kind of a bump because of GDP, and you are naturally now talking like a big fund manager. I'm other way around. I have become so micro etc. A lot of my local companies have blamed कि सर मेरे लेबर 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, 4 दिन के लिए चले गए, बोले कि आप जो जाने नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा. So people in UP and MP and nearby states, a lot of these factories had disruptions because
the laborers for right or I mean obviously wrong reasons, not right reasons, usually don't take leaves outside of big festivals. So it suddenly become like another disruptions for many of them in Jan and Feb. Having said that, naturally in that pocket of India, there would have been a velocity of money. There were reports of deposits increasing in Eastern UP and how PSU will be bigger beneficiary than this thing. But I think all that is tinkering. I mean, it's a new economic activity, so velocity of money always generates new activity. But that doesn't mean there was no disruption. A lot of business meetings, etc., in Mumbai were getting cancelled. Pratik. So you'll be surprised that I was in Mumbai and I was like, "Oh, sir, either we are going to Dubai for the Champions Trophy, or we are going to the Kumbh." So it was literally like people were busy with Champions Trophy or Kumbh. But anyway, but broadly I agree. I mean, things are actually improving, not deteriorating, Prince. So it's just a matter of time people will realize that. Right. So, Pratik, coming to you specifically, which pockets you believe maybe you have your interest on? Names are not important, but segment-wise, wherein you think that going forward 6, 12 months down the line, things will be much better in terms of returns expectations, to say which sectors or pockets you believe can do from here. I think Prince Bhai, abhi almost everything is beaten down. So picking up one or two might not do any justice because अगर कहीं से इंडिविजुअल लेवल पे अगर रिकवरी आनी है तो वो मेरे ख्याल से हर जगह आ सकती है. ऑब्वियसली द कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट में दम नहीं है या नो जिनका जहाँ पे अलग प्रॉब्लम थे वहाँ हो सकता है वो हमें स्पीड नहीं मिले. बट अभी मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज इतनी बीटन डाउन है कि आई थिंक अगर किसी के पास कैश हो और अगर वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली समझता हो तो उसने इन्वेस्ट कर देना चाहिए ऐसी कंपनीज के अंदर. एंड इसलिए मैं हम पर्पसली मैं कि किसी सेक्टर को या किसी सेगमेंट को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए. बट आई बिलीव इंडिया में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ. एक मैं अगर ब्रॉडर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एक बहुत अनब्रांडेड मार्केट टाइप रहा है. एंड अगर हमें ये एक बिलीव आ रहा है कि कंजम्पशन स्टोरी जो पिछले 3 से 4 साल में इंडिया में नहीं थी, हमें अगर ये फील आ रहा है कि भाई एटलीस्ट जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ कंजम्पशन साइड में एक आया है, बहुत छोटे लेवल पर है. बट इसका जो एक लैग इफेक्ट होता है वो 6 से 9 महीने का होता है. तो प्रोबेबली हम दिवाली के आसपास में हमें नजर आएगा कि भाई इंडिया में जो कंजम्पशन स्टोरी है वो ग्रोथ को एटलीस्ट 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक ऊपर ले जा सकता है. बिकॉज हमारा कंजम्पशन जो है वो इतना स्ट्रांग है, हमारे डेमोग्राफीज इतने स्ट्रांग है क्योंकि यंग लोग ही ज्यादा स्पेंड करते हैं और वहां से जो उसका इम्पैक्ट आने वाला कंजम्पशन आई बिलीव आई एम वेरी बुलिश ऑन इट. देर आर फ्यू कंपनीज जहां मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे अच्छे मल्टीपल पे मिल रहे हैं. आई एम टेकिंग बेट्स ऑन इट. I may be wrong, I don't know, but I believe consumption in the last 3-4 years have been very beaten down in India, and somehow I believe कि इस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आना है. ये हम जितने भी फ्रीबीज की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली इसका इकोनॉमी के अंदर इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, बट कहीं ना कहीं ये कंजम्पशन को भी लीड कर रहा है. मैंने लोगों को देखा है कि जो उनको 2-2 हज़ार रुपए मिल रहे हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं. दे आर नॉट सेविंग इन द बैंक्स और डूइंग SIPs और एनीथिंग, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग इट इमीडिएटली. तो इसका मुझे लगता है कि भाई एक अच्छा खासा इफेक्ट आना चाहिए आने वाले टाइम में. राइट. तो कमिंग टू संदीप भाई एंड धर्मेंद्र जी, सो बेसिकली जो एग्जिट वाला, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और देर इज नो स्ट्रेट आंसर टू दैट, दैट इज वेल टेकन. बट अगेन एग्जिट को लेके पिछले 6 महीने में लोगों का मतलब whenever I have conversation with people who are friends and are active in the markets, they always refer to last week or last to last week when we spoken, we should have sold, that kind of thing. So broadly saying, they do not have any framework in place, right? So when it comes to exit, right, there is no one right answer, but broadly how one should be going about it, Sandeep bhai and Dharmendra, if you can add around something. दोनों के आंसर काफी डिफरेंट होंगे, बट आई फर्स्ट लेट धर्मेंद्र टेक अ थॉट. धर्मेंद्र, ओवर टू यू प्लीज. तो मेरे लिए तो क्या टेक्निकली ब्रेकडाउन होता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ. और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई स्टॉक है इसमें अच्छा चल रहा है तो एक दो तीसरी टाइम जो थर्ड टाइम बहुत ज्यादा मार्जिन से उस
प्रीवियस जो टॉप थे उसको क्लियर नहीं करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे बुक करने का टाइम है, अगर फुल नहीं करना है तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। कि अब की बार हुआ ये था कि मार्केट निफ्टी अगर ले तो उसने टॉप बना दिया था सितंबर में, जबकि आपका मिड कैप और ये स्मॉल कैप ये सभी जनवरी तक चल रहा था। पहले क्या होता था, हम 2008 या फिर 2017-18 की बात करें तो इंडेक्स टॉप हुआ, उसके साथ ये सब टॉप हो जाता था। अब वैसा रहा नहीं था, तो अब की बार लोग उसमें भी ज्यादा, हम खुद भी फंसे, ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत ज्यादा निकल गया, क्योंकि वो होता था ना कि निफ्टी ने तो बना लिया, चलो मिड कैप स्मॉल कैप रन कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलो मिड कैप चलता रहता है, निफ्टी भले ही टॉप करे, लेकिन अब ये एट द एंड ऑफ द, जब ये एंड हुआ जनवरी के बाद, तो फिर रियल पेन पता लगा कि निफ्टी तो ऑलरेडी टॉप था, मिड कैप स्मॉल कैप भी टॉप आउट कर चुके थे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब टेक्निकल ब्रेकडाउन आ रहा है तो पूरा एग्जिट कर लेता हूँ। हाँ, कोई बहुत अच्छा कन्विक्शन है तो फिर उस समय होल्ड करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको माल मिलता भी नहीं है अगर आप चाहे तो, क्योंकि वो सेंटिमेंटल चेंज हो जाता है कि नहीं, स्टॉक आपने बेच दिया, फिर आप लेना नहीं चाहते हो, भले ही वो बहुत अच्छा टाइम पोटेंशियल है उसका, फंडामेंटल चीजों को मैं ज्यादा फंडामेंटल जानता नहीं, बट लगता है ना कि एक बार आपने बुक कर लिया फिर आपका मन नहीं होता, भले ही वो अच्छा स्टोरी है, तो उसमें मैं बना रहता हूँ, भले ही ओके वो नॉशनल लॉस हो तो चलता है, बट आई होल्ड ऑन दैट। बट हाँ, अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो चल रहा है बट वो अपने टॉप प्रीवियस स्टॉक को क्लियर नहीं कर पा रहा है बहुत बड़े मार्जिन से, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट पार्शियल बुक कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल अभी आईजीएल पे मैंने आज ट्विटर पे रखा था कि वो सिर्फ टेक्निकल ब्रेकडाउन था, तो 460 के नीचे एग्जिट कर दिया। हाँ, मैंने एक बार सोचा था कि वापस 420 से घूमेगा, बट वो एक फेल चांस था ऐसा। संदीप जी। धर्मेंद्र, ऐसे लग रहा है कि आप फिजिक्स के टीचर हो, मैं केमिस्ट्री का या मैथ्स का, तो भी हमारे क्वेश्चन इतने आंसर इतने अलग होंगे। बट मेरे पर्सपेक्टिव से, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम 100% इनटू इक्विटी सिंस 2014। एवरी सिंगल पेनी, एवरी सेविंग आई हैड इन। अगर कोई पैसा साइड में पड़ा है तो भाई वो शेयर चांस है, कुछ कमिटमेंट्स है या कुछ लिक्विडिटी नीड्स है, अदरवाइज आई एम नेवर इनटू कैश। I I've become so theoretical and ideological about equity that I stopped believing in cash call, right? सेकेंड थिंग इज कि अभी ऑब्वियसली हिंडसाइट में सब कुछ लगता है। 6 महीने पहले लोग मल्टी बैगर थ्योरी मारते थे कि हाउ नॉट सेलिंग योर विनर्स विल मेक यू फिनोमिनल वेल्थ। कोट्स लाइक ट्रेडिंग इज फॉर क्या बोलते थे, इनकम जनरेशन, एंड इन्वेस्टिंग इज फॉर वेल्थ जनरेशन। तो मुझको ये लगता है, मैं क्रिकेट का काफी बड़ा बिलीवर हूँ, इसलिए ये एनालॉजी हमेशा निकलती है। जब भी मैं क्रिकेट फॉलो करता था ना और सहवाग आउट हुआ या कोई भी आउट हुआ, तो सबसे ज्यादा गुस्सा लगती थी मुझे सिद्धू जैसे कमेंटेटर पे। बेहद ही गैर जिम्मेदाराना शॉट, क्या जरूरत थी, और वही छक्का लग जाए। तो देखिए, यही जो लापाक वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल शानदार अंदाज से, शहनशाही अंदाज से खेलते हैं, इसी से सहवाग सहवाग जानते हैं। तो ये सब पोस्ट फैक्ट कहानी है, ये मेरा मानना है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं कि मैंने जनवरी में एग्जिट कर लिया था 30%, और देखिए बिल्कुल रिलेटिवली स्मॉल पोर्टफोलियो, यंग पोर्टफोलियो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई मीन दे आर पीपल क्लेमिंग कि मैं 80% कैश पे बैठ गया था, तो बहुत बढ़िया है, गुड फॉर देम। There are a lot of people who never made money. So a lot of guys who probably would have made 5%, 6% CAGR because they were always very conservative. Now they are celebrating. What they are not realizing, that people who were invested in this bull run went up from literally 100 to 300 to 500 to 700. There are literally tons of such stories. From 700 or 300, someone coming down to 170, 230 means nothing, right? You are still at 110. So the whole point is, प्रिंस, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, वो इतना ओपन एंडेड है कि जब तक आप सेम स्टाइल आइडेंटिफाई नहीं करते ना, उसके आंसर की कोई मतलब ही नहीं है। And the only person who will always struggle in the market is the person who is not having any style. So Dravid makes career, Sehwag makes career, Ishan Kishan will never make career. Manoj Prabhakar was retired from international cricketer because on a bad day when he was, literally being beaten as a fast bowler, for 2 overs he started behaving like a spin bowler, right? He bowled like a spin. तो अगर आप अपनी कोर स्टाइल से ही हट जाएंगे प्रेशर में मार्केट के, क्योंकि सबका समय आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी आता है, कंजम्पशन का भी आता है, कैपेक्स का भी आता है, रियल एस्टेट का भी आता है। आपकी जो भी फंडामेंटल स्टाइल है, सेक्टोरल स्टाइल है, हाई ग्रोथ स्टाइल है, डिविडेंड स्टाइल है, हाइब्रिड स्टाइल है, आप उस पे बने रहेंगे तो चलेगा। नेचुरली उसके उतार भी आएंगे, उसके चढ़ाव भी आएंगे, और आप केवल कंफ्यूज होंगे कि एक ने इसने ये बोल दिया, धर्मेंद्र ने ये बोल दिया तो ऐसे कर लिए, संदीप को कॉपी कर लिया तो ऐसे कर लिए, संदीप ने कॉपी कर लिया प्रतीक को तो ऐसे कर लिए। दोज आर द पीपल हु गेट किल्ड इन द मार्केट एंड दे डिसअपीयर।
एंड स्पेशली इफ दे डू इट वाया लेवरेज और द मनी विच दे कांट अफोर्ड टू लूज। तो मेरे हिसाब से तो यार एग्जिट जो भी मेरा होता है वो रोटेशन होता है। आई एम नेवर टेकिंग ए कैश कॉल, आई मीन द बिग कैश कॉल, 2-4-5% इधर उधर वो सब छोड़ दीजिए। नथिंग लाइक गोइंग इनटू 30% इनटू कैश। स्टॉक्स में रोटेशन करता रहता हूँ, बट नथिंग लाइक मेरा वही फंडामेंटल होता है। अगर मुझे लगता है 20-30% का अगर बिजनेस है 40-50 पे जा रहा है तो बेचना ही चाहूंगा, उस तरह की कॉल्स ले लूं। सीजी इश्यूज में इतना पास्ट में इतना ज्यादा पिटाई हो रखी है प्रिंस मेरी कि वो एक ट्रॉमा होता है ना, तो मेरे लिए बहुत भयानक ट्रॉमा है कि थोड़ा भी कुछ कंसर्न आता है ना, बिना क्वेश्चन कुछ पूछे सीधे उठा के फायर सेल मार दिया। तो अपने स्ट्रिक्ट रूल तो बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऑन डाउन डेज, ऑन टफ डेज, इफ यू डोंट हैव रूल्स यू वोंट बी एबल टू ऑपरेट। So you need to have rules. You can't change rules in the middle of the game. You have to follow your template and rules, I'll say. And naturally, everyone will have different rules. Back to you, please. Thanks, Sandeep bhai. So same question, Pratik, to you with the addition that, extension in the sense like, if we talk about the time, say 6 months ago, everybody was gung-ho about their investments and people were like focusing on upward averaging, and they bought even at the high points, which usually is not a problem as far as the business is doing good. But again, when the sentiment changes, whatever dips they are buying is also going down, maybe a dent in the sentiment as you were referring to previously. So one question is on this thing, and second part of the question would be like, in your experience, and maybe Sandeep can also add, when the sentiment will be back, do you believe the kind of multiples which the market was giving to the companies will return in a jiffy, or it will take its own time and another euphoria would be required so as to bring these companies to levels wherein the multiples which were assigned to them in the past? सो प्रिंस भाई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जिट पर था, आई बिलीव अभी थियोरेटिकल तो हम सब बोल सकते हैं कि भाई हाई पे सेल करो, लो पे बाय करो, बट आइडियली ये होता नहीं है। मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं 100% इन्वेस्टेड हूं। अक्टूबर नवंबर में ऐसा फेज आया था कि जहां मैंने कुछ कंपनीज में एग्जिट किया था, बट मैंने वो पैसा जो है वो वापस दूसरे कंपनी में ऐड कर लिया था। तो इट्स लाइक कि मैं हो सकता हूँ 2-4 दिन के लिए मैं कुछ परसेंटेज कैश पे रहा हूँगा, बट मैं तुरंत मैंने उसको रोटेट कर लिया था। तो ब्रॉडली आई हैव बीन इन्वेस्टेड 90%, और जो थोड़ा बहुत कैश मेरे पास पड़ा था वो मैं अभी फेब में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। सो आई हैव लिटरली नो कैश लेफ्ट। एंड मेरा फंडा भी, जैसे संदीप भाई ने बोला है कि भाई आई ऑल्सो लाइक टू बेट ऑन लॉन्ग टर्म स्टोरीज। मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं 2 या 3 क्वार्टर के बेसिस पे जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को काटूंगा या वो करूंगा। हाँ, अगर फंडामेंटली कुछ चीजें चेंज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एग्जिट का प्रिंसिपल यही है कि अगर फंडामेंटली कुछ चेंज होता है किसी कंपनी में तो मैं एग्जिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी जो था वो गेमिंग कंपनीज के ऊपर ऐड किया 28%। तो मेरी एक गेमिंग कंपनी में मेरी थी होल्डिंग उस टाइम पे। जैसे ही मुझे ये न्यूज समझ में आई कि भाई यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो अब सीधा उनके फ्यूचर रेवेन्यू पे होने वाला है, फ्यूचर कैश फ्लोज पे होने वाला है, मैंने तुरंत मेरी पोजीशन काट दी थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मैं उस टाइम पे प्रॉफिट में था या लॉस में था। तो मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी बेसिकली वही होती है कि अगर फंडामेंटली बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है, इधर ड्यू टू गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज या कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी ने या आरबीआई ने अगर कुछ चेंजेस किया है, उससे अगर मेरा बिजनेस इम्पैक्ट होता तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। आई डोंट लुक एट प्राइस, वैल्यूएशन, वट। और मे बी अगर कुछ और इंटरनली कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जैसा कुछ आता तो मैं एग्जिट करता हूँ। अदरवाइज आई स्टे इन्वेस्टेड। और जो फॉल की बात करें तो मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप फॉल आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 15% के आसपास हो सकता है, तो मैं इसलिए एग्जिट नहीं किया उस टाइम पे। बट ये 30-40% का फॉल मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई अगर मेरे थीसिस अभी भी इन प्लेस है, सो आई एम श्योर इट विल बी बैक। आपका जो सेकंड क्वेश्चन सेंटिमेंट्स के ऊपर था, तो आई बिलीव सेंटिमेंट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द तो मुझे लगता नहीं आएंगे। अब मार्केट जो है या टिपिकली जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं किसी सिग्नल का कि भाई अभी आप पहले परफॉर्म करो, हम होप के बेसिस पे या उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। सो प्रोबेबली Q4 के नंबर्स जब आएंगे, Q4 GDP नंबर्स जब आएंगे,
तो अप्रैल एंड मई ऑनवर्ड्स में भी चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो। अभी हो सकता है कि रिलीफ रैली हमें देखने मिल रहा है, बट वो रिलीफ रैली हो सकता है कितनी लंबी होगी, आई डोंट नो। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्रोबेबली एक आध महीने अभी और इस टाइप का साथ कंसोलिडेट करें मार्केट। आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, नीदर आई एम एनी अदर एक्सपर्ट, बट आई पर्सनली बिलीव कि कंफर्मेशन के बाद में ही शायद अब सेंटिमेंट्स चेंज होंगे रादर देन ऑन होप। तो अगर अभी किसी कंपनी को कोई ऑर्डर भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो हो सकता है एक दिन के लिए वो स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ विद इन अ वीक आई बिलीव वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। तो अब परफॉर्मेंस मैटर करने वाला है, तभी सेंटिमेंट्स चेंज होंगे। न्यूज बेस्ड या होप बेस्ड आई डोंट थिंक अभी इसमें भी कोई तिलों में तेल बचा है। दैट्स माय फंडा। Sandeep bhai. See, what we were seeing was euphoria. That was the last leg of bull. Usually इस तरह की रिवर्सल नहीं होती, क्योंकि इसमें टाइम करेक्शन और मनी करेक्शन दोनों हो गया है। टाइम हो सकता है अभी और भी चले, बट 6 महीने के निफ्टी के फॉल हो चुके हैं, 4 महीने के, 3 महीने के स्मॉल कैप मिड कैप, और लास्ट 20 days हैज बीन वेरी ब्रूटल फॉर स्मॉल कैप मिड कैप इनिशियली, एंड माइक्रो कैप में और एग्जैजरेट। तो जो हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार ये बड़ा सरप्राइजिंग है, अभी जिक्र किया धर्मेंद्र में भी, हम करते थे ना कि निफ्टी गिरा है 10% स्मॉल कैप मिड कैप, हम जनवरी के स्पेसिस में बात करते थे। वो सारा मिराज क्लियर हो गया 1.5 महीने में। तो हाई बीटा इज सपोज टू फॉल मोर, एंड दैट हैज हैपेंड। अब यहाँ से जो भी परफॉर्मेंस आएगी, मेरा पर्सनली मानना है वो री रेटिंग में नहीं आएगी, और वो केवल और केवल अर्निंग ड्रिवन आएगी। अर्निंग्स आने से अर्निंग मल्टीपल्स री रेट नहीं होंगे। दूसरा, मैं ट्विटर्स में काफी देखता था इस पूरे को पोस्ट कोविड में, देयर वर सो मेनी पीपल लिटरली राइटिंग थ्रेड्स कि देखो अगर मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है तो दो तरीका है, लो अर्निंग, लो मार्जिन, मार्जिन एक्सपेंशन, and that coupled with this thing. All these are good, great theories hindsight में. Multiples are usually just not stock specific. It is also wider market sentiments specific, certain sectoral, वो कोई भी आदमी गेस नहीं कर पाता। आप अगर पिछले 15-18 महीने में ही देखिए, मतलब लिटरली सेक्टर रोटेशन होता रहता है, ठीक है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स, देयर आर लॉट ऑफ मोमेंटम गाइज, ग्रेट स्मार्ट जेंटलमैन हु कैन ट्रैक इंडस्ट्री रोटेशन। इनफैक्ट मैंने भी प्रिंस, लोग मुझसे पूछते हैं कि पहले जो भी थोड़ा बहुत मेरा पैसा बनता था वो सेक्टर पता है यार इससे ज्यादा क्या रैली करेंगे, तो थोड़ा सा एक्सेस बेच के एससीएल ले लिया, एससीएल बेच के अगले रोटेशन में थोड़ा सीमेंट ले लिया, तो उतना तो समझ में आ जाता है, उसके लिए कोई स्टैटिस्टिशियन होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो री रेटिंग वाला गेम है ना, कि लोग मान के चल रहे हैं कि यार 20x कैसे होगा, 5x होगी अर्निंग ग्रोथ, और मल्टीपल्स हो जाएगा 4, तो सादा सीधे कंपाउंडिंग लगा के 20 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मल्टी बैगर के फॉर्मूले है, आई डोंट थिंक that is coming to coming back in any near future, क्योंकि इसमें काफी लोगों को काफी अच्छी खासी हिट लगी है। एक वन वे स्ट्रीट में लोगों का पैसा बना था। आप इस मेन बोर्ड में स्टॉक्स देखिए, अभी थोड़ी देर के मैक्रो कैप्स को साइड में रखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, वारी है, सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, जो मतलब सो मेनी ऑफ दीज राइट विच वर ट्रेडिंग एट लेट्स से 100 rupees in 2018-19, earning went up 150%, stocks went up 700%. All those cases, that money is gone, और आधा गिर गया है, उसमें से कुछ लोगों ने बना लिया होगा, कुछ लोगों ने बेच करके घर ले लिया होगा, कुछ लोग लेट आए होंगे, उनका लॉस हो गया होगा, बट एन एग्रीगेट लेवल हाफ ऑफ दैट इज गॉन. So what is left is earning, and some re-rating is still left, which can easily get wiped out in another 3-4 months of sideways or downward correction. But यहाँ से जो भी expectation होगी वो केवल और केवल अर्निंग ग्रोथ की होगी. तो आई थिंक वी नीड टू हैव ए वेरी लेजर फोकस ऑन अर्निंग्स, try to work much harder than we were doing in past cycle. We have to figure out which company can deliver what they are trying to do. Even if they deliver, let's say 80% of it, you can still make decent money. And people should also cut down on their expectation. People trolling, big fund managers making 15% as if they're wasting their life. I mean, at that size, they're not wasting life. But then they were also great guys trolling back a lot of these small retailers, etc. The reality is in years like 2025, 26, I mean, I was also getting carried away. I made a lot of mistakes, frankly. And I'm so happy that Pratik is saying that he couldn't guess it. What I find surprising is that people claiming, getting it right all the time. I mean, why is it so tough to say that I couldn't get it? I mean,
and I don't even call it a mistake. I mean, that's the construct of market. That's how it works, right? So there are still people who are claiming कि ये तो बहुत obvious था, तुमसे miss हो गया. बट वो लोग हैं जो 18 महीने पहले से कैश में बैठे थे, तो उनकी तो क्या बात सुनना. जो बंदा फुली इन्वेस्टेड था 2 महीने पहले एग्जिट लिया, तो उसका तो मैं तब भी एक बार सुन लूं. आप इट इज लिटरली लाइक मी कमेंटिंग अबाउट क्रिप्टो. आई मीन, आई डू कमेंट समटाइम्स इन प्राइवेट सर्कल्स, but that has no meaning because I was never invested in crypto. So then how does my opinion matters on crypto? So similarly, people who are never investors can't judge investors, right? So sentiments नहीं वापस आएंगे फ्रेंड्स इतनी जल्दी. And that's fine. I mean, that's par for the course in market, frankly. That shouldn't be a concern. ये जो मैंने बोला था होता है सर, इसकी भी वैलिडिटी रखनी चाहिए, 3 महीने 6 महीने कुछ. यार ट्वीट डिलीट कर देना एनीवेज, यार, और क्या तो बोलोगे. मुझे तो लगता है कि डिलीशन ऑफ ट्वीट, anybody, and surely, I mean, those who know me can easily guess that I'm not targeting anyone. So by sheer chance अगर कहीं पे target हो भी रहा है तो वो coincidence है. And there are tons of people who delete their tweets. मेरे हिसाब से if you delete tweet, that's straight away admission of guilt. Unless you are clearly clarifying that I've used a foul language or I've used an incorrect data, which I'm now disclosing. So you, instead of deleting, you can simply write a comment beneath saying that I analyzed this such and such data in X thing. After 3 months, I realized my analysis was wrong, and that's why I'm correcting it. If you really feel like correcting it, what is the point of simply deleting it? That's like, क्या बोलते हैं ना, सबूत मिटाना. तो बहुत बहुत है यार, true that. बैठे हुए हैं, भर भर के लोग बैठे हुए हैं. So an extension to the ongoing discussion, Sandeep bhai. So basically, as you were also referring to time consolidation, so if it gets extended from here, right? हम 1-2 क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, but as you rightly said कि मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है. What if it extends? So how we should be placing ourselves? And on the top of यार that, देखो, कहने का मतलब, अगर although एज in एन the past, इन्वेस्टर आपको 6 महीने का जीरो रिटर्न बॉदर करता है, तो मार्केट वॉज नेवर मेंट फॉर यू. सो व्हाई डू वी इवन नीड टू एनालाइज. बताओ, मतलब व्हाई इज इट सो अनथिंकेबल. आई मीन, डिडंट इट हैपन सो मेनी टाइम्स इन पास्ट. इट ऑलवेज यूज्ड टू हैपन. इट ऑलवेज हैपेंस आल्सो. आई मीन, निफ्टी का आप पैटर्न निकालोगे तो यही निकलेगा. एक साल 33%, अगले साल 5-10%, उसके अगले साल -10%. दैट्स हाउ यू गेट ए 15% कैगर. So 6 months of sideways means nothing. Bigger fear should be, what if another 20% cut from here at the portfolio? That will be very brutal. If that doesn't happen, you get a time to consolidate, clean up your portfolio, replace your bets, reassess earnings, redo bets. That's a good thing to happen. Not to say that's my base case. I'm still hoping that will be decently positive in another 3 to 4 months from here. That doesn't mean if I get it wrong, I'll be heartbroken, or I'll be, shaken, or मैं बर्बाद हो जाऊंगा. Anything can happen. So what? I mean, you always have your base bet, but you're cognizant that it may not work also, and that's fine. Your portfolio positions should not be such that if base case doesn't happen, you're lost. So I'm hoping things will recover. Sideways corrections की जो बात कहा था, I still feel there is a reasonable overvaluation left in small cap, mid caps. Especially at least half of the stocks which are trading 30, 40, 50 multiples. They were always trading 20s, and they can only grow at 10 to 15%. Likes of Trent and everything, or even for that matter, great companies like Tata Consumer and everything. There is absolutely no reason for them to trade at those multiples. If they go global, they will not even get 1/3 multiples. So as if India has developed some unique private markets. So right. for And those Sandeep bhai, segments, Nifty, we should be up. Macro caps, if numbers come, some naturally 1/3 will be decisively higher, 1/3 will be here, 1/3 probably will get beaten down. But that's how early growth investing is supposed to work. right. So perhaps I'll come to Sandeep bhai with the same question. Before that, Prateek bhai, if we draw some parallel, and we had discussed with Sandeep bhai in the past also, do you find any semblance or any differences? The time period of small and micro caps 2018 onwards for next 2-3 years was a real pain period, right? And what has materially changed, or it could be possibly we can also, well, there is some possibility in your view that the things can repeat, and we can have elongated pain period from here also.
प्रिंस भाई देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में ना कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती है, फिर वो स्टॉक मार्केट हो या जिंदगी का कोई चीज हो. सो आई बिलीव इट्स अ साइकिल. तो जो बुल मार्केट हमने अभी देखा है उसको प्रोबेबली आने में कुछ टाइम लगेगा, बट वो आएगा जरूर. अब मैं उतना कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूं कि भाई नहीं ये 2 साल बाद में आएगा या 5 साल बाद में आएगा. आई डोंट नो, बट इट विल कम. एंड इट्स अ साइकिल बेसिकली. तो हर एक चीज का साइकिल होता है. हमने एक बुल फेज देखा है, क्योंकि मैं मार्केट में मैंने 2008 का भी क्रैश देखा है. 2013 में जब यूएस के अंदर वो कट डाउन हुए थे स्टिमुलस, वो देखा है. ग्रीस वाला इशू देखा है, ब्रेग्जिट देखा है, काफी चीज देखी है. तो ये स्मॉल कैप के अंदर ये हिट जो है वो हमेशा से आई है पिछले 15 सालों में. एंड दे हैव रिकवर्ड वेल. तो बैड कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट गंदी है या जो यूफोरिया में भागे थे, क्रक्स कुछ नहीं था उनके अंदर, वो कभी उठी नहीं. आई डोंट वांट टू नेम दोस कंपनीज, बट देयर आर जो रिटेल लोगों की फेवरेट्स थी जिनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते थे. एंड जो 2017-18 के अंदर जिन्होंने मार्केट में काम किया, आई नो, आई मीन लोग समझ जाएंगे मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूँ. सो दोज कंपनीज टुडे आर स्टिल पेनी ही है, आधी से ज्यादा बंद हो गई है. सो दिस इज लाइकली टू हैपन अगेन नाउ, कि जो कंपनीज अभी पेनी बन रही हैं, दे आर गोइंग टू बी पेनी फॉर अ रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज विल बाउंस बैक फॉर श्योर. तो ये जो यूफोरिया वाला पीरियड था ये आएगा मार्केट में फिर से. I don't know when. It is definitely not coming immediately. It will take time. Time correction होगा. अर्निंग्स के बेसिस पे ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर मैं देखना चाहूंगा कि भाई मैनेजमेंट ने जो बोला है वो 2 से 3 क्वार्टर बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तब प्रोबेबली हमें लगता है कि वो जो हर्ड मेंटालिटी जो है ना वो आनी शुरू होगी. तो वो हर्ड मेंटालिटी आने में टाइम लगेगा. गुड बैड आई डोंट नो, बट या दैट हैज बीन द मार्केट साइकिल फॉर लास्ट मेनी डेकेड्स, and that will repeat. So it's just a matter of time. But yeah, immediately I'm not expecting कि भाई जैसे संदीप भाई ने बोला था कि आप जो री रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है री रेटिंग शायद इमीडिएटली नहीं होने वाला है. जो भी ग्रोथ आने वाला है वो बिजनेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा. तो आई बिलीव वी शुड एटलीस्ट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस, एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज विल बाउंस बैक. उनको भी री रेटिंग मिलेगी, कब आई डोंट नो, बट मिलेगी जरूर. Sandeep bhai, same extension. I mean, what differentiation you have in your understanding, although this has been discussed a couple of times कि 2018 में और अभी में क्या changes है, so that we can quickly. प्रिंस, आई वाज प्रेडोमिनेंटली इनटू लार्ज कैप्स बैक देन. तो मुझे 2018 की एकेडमिक कहानियां तो पता है. आई नेवर फेल्ट इट फर्स्ट हैंड. मैं उतना एक्टिव नहीं था स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप्स में. मतलब मेरी जो पोजीशंस थी वो नन ऑफ दोज वर पेनी स्टॉक्स एक्सेट्रा. तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एकेडमिक आंसर देने का कोई फायदा नहीं है. मतलब आई नो इनफ टू हैव ए प्राइवेट. Right, sir. So, Sandeep, one question for you. Like, I've seen you often using the word early growth investing for the SME segment. So, coming to the risk, what are the risks that some of the companies will, I mean, die or say won't be there, say 5 years down the line? एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ना मुझको रिसेंटली काफी लोग पूछते रहते हैं डीएम्स में, और यू नो दोज पीपल हु हैव माय नंबर्स. तो सी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली ग्रोथ इन्वेस्टिंग, राइट. आप जब स्टार्टअप्स में पैसे डालते हो तो आप ये तो नहीं सवाल पूछते हो, मतलब ये पूछते हो बट यू आर कॉग्निजेंट ऑफ दैट नोन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ दैट सेगमेंट कि इसमें से कुछ कंपनियां सिग्निफिकेंट विनर्स होंगी, कुछ एंड लेट्स कीप असाइड यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, falsifications of results and those kind of cases, 5%, 10% here. If you do not have capability to exclude those kind of characters, then obviously you failed at the step one itself. It really doesn't matter whether you get hit after 2 years, 3 years, or 6 months, right? Assuming you have that level of capability, broadly, not everyone will have, but only those who have are those who have the network which can do it for them. You know, some kind of a DD or forensic or the people analysis, the promoter integrity and those sort of things. Integrity is a too big a word, but at least he's not a you know outright cheater, outright scamster kind of a person. So those cases apart, by definition, you know, things are supposed to
fall through the cracks, right? Globally also, not only small, but even in large caps, the mortality rate of businesses is continuously going up purely because of innovations, technology, big becoming bigger. There is always big disruptions. Earlier globalization was happening, now reverse of globalization is happening. The market structures are moving much, much faster than earlier used to be. I mean, there's industries like FMCG, automobiles globally, which have top 5-10 players, which are probably there for 100 years. But most of the modern industries have very small longevities in companies, right? So why only talk about small, micro caps or startups, right? And within this segment, naturally something will die. And if nothing dies, then there is something wrong, right? Having said that, purely in the listed space in SMEs, because of the excessive focus of regulators to quote unquote protect retail investors, they have many conditions, primarily being operating profits, basic level of profitability, which ensures loss-making models which can come on the main board. And there is nothing wrong in Paytm getting listed. I'm not of the camp which thinks that it is so broadly wrong to, get Mamaearth listed on main board. I mean, they have right to come. And it is for people to figure out, whether they want to pay for such stories or not, whether you want to pay 10 or 100 or 200 in bull market, bear market, that's a separate issue. But those companies also have a legal right to get listed because end of the day, they are also business ventures, right? But unlike main board, there are strict conditions which ensures that unit level profitability is ensured. So there is no model which will become profitable after 3 years. So those kind of a startup story never come on the listed SME space. Again, the big if is numbers are not fabricated, numbers are not jumped up, and those incentives I personally feel are equally present in main board. That's human nature. Institutions will do it in more sophisticated manners. UHNIs and LMs and small promoters will do it in a more rugged manner or more, manners in which they can get easily caught also. Right? They can't hold up falsifications for too long, right? So you will see Hyundai पहले रिजल्ट ठोक दिया जिसको बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में. अभी वो बड़ी कंपनी है तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं है. यही चीज मेन बोर्ड एसमी में कोई करता है तो प्रमोटर के कैरेक्टर से लेकर के और किसी ने भी उसके बारे में पॉजिटिव लाइन बोली हो या कुछ भी हो तो उसकी हम बाजी बजा देंगे. इंडसइंड में प्रमोटर्स ने टॉप 2 ने बेचा, फेयर इनफ, उनका हक है, डिस्क्लोज किया गया है, एवरीथिंग इज लेजिट, एवरीथिंग इज एज पर द बुक्स. Imagine any promoter doing it, selling like every single stock of them, and then after 9 months declaring a major corporate quote unquote scandal, which in their own language they followed 6 months back. They figured out 6 months back, and which is going back 6 years into the history. And this is the bank which has a history of such issues. So it's not like first one-off kind of a thing, right? But media is kind because, I mean, no one is asking question. No one is trying to find out evil design because we understand that's small part of markets and we don't need to be too cynical. If we as an Indian are already too cynical, frankly, right? So there is no point of, trying to find too much of a conspiracy or characterization in everything. Coming back to SMEs, इसका कुछ भी आंसर नहीं हो सकता है प्रिंस, बट based on my understanding of SME universe, I naturally track 25-30 companies where I have invested or I have exited or I have closely evaluated, much more than rest of the 500-600, but purely I have become overactive in this segment. I feel at least 10% will trade sideways in a way that their businesses will drop off, either because promoter got disoriented or their business model became unsustainable or they couldn't raise the funding, they got hit by one big contract, that cash flow never came. So out of these 800 companies, probably 10%, and I'm 10% keeping on the side on the, bad cases, some skeletons into the cupboard, those kind of cases, those will happen in main board also. और ये कंपनियां कई बार जरूरी नहीं है कि उनके सो कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ओपन में आए, वो साइडवेज ट्रेड करने लगे, आपको पता नहीं चलेगा. फिर 3-4 साल के बाद कोई नई स्टोरी आएगी, नया सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आएगा, दे विल ऑलवेज फाइंड आउट टू री रिलीज देयर स्टोरीज, राइट? सो उस तरह के केसेस हटा देते हैं. अनदर 10% विल नेचुरली, डाई इज ए रॉन्ग वर्ड, बट प्रॉब्ली यूल फिगर आउट कि यार ये तो कंपनी आई थी तो इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कुछ. आई मीन दे विल बिकम लाइक ए मेन बोर्ड. सो मुझे बस 1 सेकंड देना प्रिंस, मैंने ये डेटा गोवा में भी प्रेजेंट किया था. 1 मिनट देना प्लीज मुझे. ये
I'll paste it here. ये मैं हमेशा बोलता था, लकीली उस दिन मैंने डेटा के साथ दिखा दिया. आपको मैं प्रिंस भेज रहा हूँ, इफ यू कैन पिन इट इन योर space, because your messages are not active for me. If you see right now, 60% of main board companies have less than 500 crore of market cap. 60% of main board companies are less than 500 crore of market cap. Now contrast it with SMEs, which are supposed to come at 50, 50 to 100 to 200 crore kind of a market cap. So I consider them like, rookie batsmen of 17-year-old, 18-year-old. Will everyone go to the Ranji or IPL team or international? Obviously not, right? But at least we know that there are no bad history of this guy being a druggist or will, stop focusing on cricket and everything. But there are 60% of main board companies, the people who are like 35-year-old, 37-year-olds, fag end of their careers, no longer interested, coming into talk shows and, basically doing dance rather than cricket, that kind of purely in terms of cricket, nothing wrong in going into dance shows and everything. So वो already done and dusted cases है. वहां पे किसी का फोकस नहीं है. वहां पे अगर आप जाकर के दिखाओगे तो आपको ना वैल्यूएशन समझ में आएगा, ना गवर्नेंस समझ में आएगी, ना आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या डिस्क्लोजर है और ये क्यों ट्रेड कर रहे हैं. और वहां पे सब कुछ बहुत प्यार से हो जाएगा. लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फोकस लगा रखा है उस पे कि गाजियाबाद की क्रिकेट एकेडमी से 3 आईपीएल में क्रिकेटर आए हैं. कुछ ना कुछ तो बेईमानी चल रहा होगा, या तो ये लोकल विधायक को पैसे दिया होगा, बिकॉज दैट्स हाउ सिनिकल वी आर, राइट, एज एन इंडियंस. तो बट नेचुरली हर एकेडमी से हर बंदा रणजी और आईपीएल के लेवल पे नहीं जाएगा. तो टू समराइज, I mean 10%, 20% will go sideways. Even if they won't die, they will be like a businesses which you will probably think of not running properly or lost momentum, lost focus, lost discipline. But back to you, Prince. Q3 results broadly, what's your view on the results and any expectations on the Q4? Is it going to be any better than Q3 on a broader level, or maybe the universe which you are tracking specifically? Q4 are better in the sense March being, obviously the closing of the year, the payments are made to the companies, and you were talking about B2G specifically, those companies which are into which cater to the government. Majority of the payments are made in the March period. So any thoughts around that? In the meantime, I'll get to Nitin. या सो आई बिलीव अगर हम Q3 के नंबर्स को पहले कंपेयर करें Q2 के साथ में, तो ब्रॉडली आई बिलीव जो बास्केट है हमारा 4000 कंपनीज का, ये मैं कहीं पढ़ा था मैंने कि रेवेन्यू जो है वो 6.2% ग्रो किया है एज कंपेयर टू Q2. एबिटा जो है वो अराउंड 11% ग्रो किया है एंड पैट अराउंड 12% ग्रो किया है. तो Q3 जो है वो टिपिकली Q2 से बहुत अच्छा रहा है. एंड Q4 आई पर्सनली बिलीव एक ब्रॉडर लेवल पे Q3 से बेटर रह सकता है. देयर विल बी सम अप्स एंड डाउन्स इन इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स हियर एंड देयर, बट ब्रॉडली आई बिलीव बिकॉज जैसा कि हमने देखा था कि Q1 Q2 के अंदर गवर्नमेंट केपेक्स जो था वो ना के बराबर था. अब पेमेंट्स आनी जो है वो शुरू हो गई है B2G साइड में. कंजम्पशन का जहां मैं कुछ पॉकेट्स देख रहा हूँ वहां पे पिकअप आया है. सो ब्रॉडली आई बिलीव Q4 इज लाइकली टू बी गुड. एंड मैंने जैसा कि स्पेस में पहले भी कहा था कि मैंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है हमारे, उनकी मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई Q4 का जो जीडीपी रहने वाला है वो प्रोबेबली 7.5 7.6 तक आ सकता है थैंक्स टू महाकुंभ. वो 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास जो है हमारी जीडीपी को एक किक देगा. ठीक है, ये एक टेम्परेरी किक रहेगा. तो आई बिलीव कि Q4 जो है वो Q3 से बेटर रहना चाहिए. Few setbacks here and there possible, but broadly I believe Q4 should be good. And next year का Q1 and Q2 I believe हमें base effect मिलेगा, because last year का जो Q1 और Q2 जो था वो बहुत ही low base पे था. इस बार हमें वो base effect के कारण हमारे जो growth numbers हैं वो अच्छे दिखने चाहिए. So आने वाले basically 3 quarters Q4, Q1 और Q2 I believe should be broadly better than what it was in previous